Hello students, how are you? I hope you will be fine. My dear students, in today's session we will see the chemical properties of amines. So in my previous video we have discussed about the basic character of amines, and also we have compared them that the basicity of compare the basicity of different amines, means alkyl amines or aryl amines. So in today's session, we will discuss about chemical properties. First was basic character, that was chemical property. Now we will start second chemical property, that is alkylation. Alkylation, it means the reaction of alkyl group, or simply we can say addition of alkyl group. So when primary amine it reacts with alkyl halide Rx, it forms secondary amine. Secondary amine on reaction with Rx it forms tertiary amine. Tertiary amine on reaction with Rx it will form quaternary amine. Okay, so in this way we can say that amines when react with alkyl halide they form other amines. Primary forms second, secondary forms tertiary, tertiary forms quaternary. Okay, and the mechanism is means how this alkyl group is added. So here see, this is the primary amine RNH2. When this primary amine reacts with Rx, then it will form, here see, very simple fact, R it will replace one hydrogen, and that hydrogen will form bond with X, so HX will be formed. So this R is replacing H, and the remaining things are same. Okay, plus in place of Rx it will form HX. So this is the mechanism. In this way each hydrogen will be replaced from this group. One more thing now, you see, okay, here primary amine is quite good. Secondary amine it has one more hydrogen, so it can replace this hydrogen can be replaced by tertiary. But what will happen if tertiary reacts with one more alkyl group or alkyl halide? So definitely what will happening here, Rx it will convert into R plus and X minus, and nitrogen has lone pair of electrons. These lone pair of electrons will be donated to R plus. So with this nitrogen one more R will be added, and nitrogen will gain positive charge, and X it will remain here. So in this way the compound which will be formed will be this is R4, nitrogen is positively charged and X minus. So this is ammonium, quaternary ammonium. Okay, प्राइमरी मतलब एक एल्किल ग्रुप, सेकेंडरी मतलब दो एल्किल ग्रुप, ठीक है, तीन मतलब टर्सरी, और चार मतलब क्वाटरनरी. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एल्काइलेशन. इस एल्काइलेशन में एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, CH3NH2 प्लस CH3Cl, इसका प्रोडक्ट बताइए क्या होगा. तो आपको क्या करना होगा, पहले ही आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सा एल्किल ग्रुप है. ठीक है, और कौन सा एल्किल ग्रुप है वो छोड़ो, सीधे सीधे ये देखो नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितने एल्किल ग्रुप हैं. एक एल्किल ग्रुप है, मतलब एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए आप, CH3NH, उस हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, CH3. ये हो गया आपका आंसर. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे. आफ्टर एल्काइलेशन, नाउ थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी इट इज एसिलेशन. एसिलेशन मतलब रिएक्शन ऑफ एसिडिक क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइंस. देखो कौन कौन से वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक मतलब सारे टाइप के एमाइंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइन, यहाँ टर्सरी की बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ बात कर रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइन. दे रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड एंड ईस्टर्स बाय nucleophilic substitution reaction. This is known as acylation. So what is acylation? Reaction of primary and secondary amines with acid chloride or acid anhydride or ester.
सो दिस रिएक्शन इज नोन एज एसिलेशन। नाउ एसिलेशन होगा कैसे, तो यहां पर हम बनाते हैं पहले एक प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन कौन सा हो गया, RNH2। इसकी रिएक्शन किससे कराना है हमको, एसिड क्लोराइड। अब देखो एसिड क्लोराइड क्या होता है, एसिड क्लोराइड का मतलब अपने एसिड पड़ा हुआ है ऑर्गेनिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड कौन सा होता है, CH3COOH, ये है एसिड। यदि इस एसिड में से OH की जगह हम क्या लिखते हैं, Cl, तो ये हो गया एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड क्लियर हो गया, क्या होगा, एसिड क्लोराइड मतलब एसिड, कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में OH को रिप्लेस कर दीजिए तो ये बन जाएगा एसिड क्लोराइड। तो अब देखो स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3COCl, CH3CCl O और होगा तो यहां पर लिखेंगे हम डबल बॉन्ड O। ओके, ये हो गया डबल बॉन्ड O, तो हो गया एसिड क्लोराइड। जब इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो बहुत सिंपल सा तरीका है, H और Cl इन दोनों को निकाल देना है। नाइट्रोजन का बॉन्ड खाली होगा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड खाली होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन को ऐड कर देना है। ठीक है, किस तरीके से ऐड करेंगे, ये होगी इसकी मैकेनिज्म। एक HCl निकल गया, RNH ये रिमेनिंग थिंग होगी, और यहां पर बचेगा दिस पार्ट, ये हो गया क्या, एन एल्किल इथेन एमाइड। एमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, इस चीज को समझ लेना। एमाइड मतलब होता है CONH2, ये होता है एमाइड। इसमें हमने क्या किया, H की जगह क्या लिखा है, H की जगह से R लिखा है। ये देखो CONH2 लिखना था, उसकी जगह हमने R लिख दिया। तो ये एल्किल ग्रुप किससे बॉन्डेड है, नाइट्रोजन से, इसलिए इसको लिखेंगे हम एन एल्किल इथेन एमाइड। इथेन क्यों, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है। और एन क्यों लिखा हमने, क्योंकि एल्किल ग्रुप किससे बॉन्डेड है, नाइट्रोजन से। आप नॉमेनक्लेचर सेक्शन में देख सकते हैं इसको, क्यों हमने इसको इस तरीके से लिखा है। तो ये हो गया हमारे पास रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। सेकेंड देखना है हमको रिएक्शन विद ये एसिड, ये प्राइमरी देखा था हमने। अब ये सेकेंडरी में देखो, सेकेंडरी में क्या हो रहा है, हमारे पास कितने एल्किल ग्रुप होंगे, 2 एल्किल ग्रुप होंगे, तो दोनों एल्किल ग्रुप को रिप्लेस कर देना है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, RCONH2 एमाइड था, यहां पर हमने 2 एल्किल ग्रुप को ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, NN डाई एल्किल इथेन एमाइड। एक R ग्रुप होगा तो ओनली N एल्किल इथेन एमाइड, 2 एल्किल ग्रुप होंगे डाई एल्किल इथेन एमाइड। ये हो गया रिएक्शन किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ। ठीक है, अब हमको रिएक्शन कराना है एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो एसिड एनहाइड्राइड अब क्या होगा, तो एसिड एनहाइड्राइड के लिए बहुत सिंपल सा तरीका समझना है, CH3COOH एक, और दूसरा एसिड ग्रुप CH3COO और यहां पर भी H। तो 2 एसिड ग्रुप में से एक H2 को यदि हम निकाल दें तो यह बचेगा एसिड एनहाइड्राइड। हाइड्राइड मतलब क्या, एनहाइड्राइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल कम हो गया। तो दोनों कार्बन किससे बॉन्डेड होंगे, ऑक्सीजन से। ये कार्बन दोनों ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएंगे। तो देखो CH3 CH3 C इसके साथ होगा डबल बॉन्ड O, फिर इसके साथ ऑक्सीजन ये, फिर कार्बन डबल बॉन्ड O, यहां पर होगा ऑक्सीजन, और ये फिर CH3। तो ये हो गया हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड। ये देखो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एसिड एनहाइड्राइड। अब इस एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन किससे किससे कराना है, तो बहुत सिंपल सा तरीका देखना, यहां पर अब इन दोनों में कंपेयर करना, CH3CO, ठीक है, और यहां पर कंपेयर करना CH3CO। तो रिमेनिंग पार्ट क्या है, Cl की जगह क्या लिख दिया हमने, इस पार्ट को लिख दिया है, और ये Cl किसके साथ निकल रहा था, H के साथ। तो इसका मतलब बॉन्ड किसके किसके बीच बनेगा, इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। तो CH3COOH एक एसिटिक ग्रुप निकलेगा, और ये कार्बन से कहां किससे कनेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ, सेम प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये देखिए ये इसका सेम प्रोडक्ट आपको मिलेगा, नाइट्रोजन, इसके साथ एक एल्किल ग्रुप है, एक H है, और इस नाइट्रोजन से बॉन्ड कौन बनाएगा, COCH3। ये हो गया प्राइमरी अमाइन, रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड। सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा, तो ऑब्वियसली सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन क्या होगी, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा, सेकेंडरी अमाइन में यहाँ पर एक R और आ जाएगा, यहाँ पर R आ जाएगा। तो फिर से
कंपाउंड तो वही रहेगा, ये हो जाएगा NN डाइएथिल इथेनामाइड। अब हमें रिएक्शन किसके साथ कराना है, हमें रिएक्शन कराना है अब ये नेक्स्ट जो कंपाउंड मैं यहां पर बना रहा हूं, इस कंपाउंड का नाम है बेंजिल क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम क्या है, एसिड क्लोराइड की जगह क्या आ रहा है, ये बेंजिल क्लोराइड, क्योंकि बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, C6H5COOH। तो यह बेंजोइक एसिड में OH की जगह क्या लिख दिया हमने, Cl को लिख दिया, तो ये हो गया बेंजोइल क्लोराइड। तो अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, प्राइमरी एमाइन, कौन, प्राइमरी एमाइन रिएक्ट्स विद बेंजिल क्लोराइड टू फॉर्म, जब इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, टू फॉर्म C6H5, यहां पर क्या होगा, यहां पर आएगा C6H5, ठीक है। तो ये कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा एन मैथिल बेंजेनामाइड, यहां पर इसको लिख लीजिएगा, ये पर क्या होगा C6H5, एन मैथिल बेंजेनामाइड। गॉट इट। सो दिस विल बी द कंपाउंड। इसमें क्या होगा, सिंपल सा फैक्ट समझ लेना है, क्या समझना है कि यहां पर हमने क्या किया है, फिर से HCl को निकाल दिया, तो ये हमारे पास बनेगा एन मैथिल बेंजेनामाइड। तो इसमें एसिलेशन में हमने एसिलेशन में क्या देखा, प्राइमरी एमाइन सेकेंडरी एमाइन दोनों का एसिलेशन क्या होगा, उसके बाद एसिडिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन, और लास्ट में बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन क्या है। तो जब बेंजोइल क्लोराइड, मतलब ये वाली रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड, दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजोइलेशन। बेंजोइल क्लोराइड है ना, नाम याद रखना, बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन वो क्या कहलाएगी, बेंजोइलेशन। एसिलेशन और बेंजोइलेशन, एसिलेशन मतलब एसिड एनहाइड्राइड एसिड क्लोराइड की रिएक्शन, C6H5 की जगह क्या लिखेंगे हम, CH3। तो जब CH3 होगा तो इसको हम कहेंगे एसिलेशन, और C6H5 होगा तो इसको हम कहेंगे बेंजोइलेशन। ओके, ये रिएक्शन हो गई एसिलेशन। आफ्टर एसिलेशन, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज कार्बिल एमीन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, टिक आउट कर लेना, जितने स्टार लगाना वो लगा लेना, बेंजोइलेशन में और कार्बिल एमीन रिएक्शन में। कार्बिल एमीन रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस, एल्किलेशन में किसकी रिएक्शन हो रही थी, प्राइमरी और सेकेंडरी की, पर कार्बिल एमीन रिएक्शन कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमाइन। तो इसको हम डिस्टिंगाइज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसके लिए हम कार्बिल एमीन रिएक्शन यूज कर सकते हैं। सो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड alcoholic potassium hydroxide form isocyanide or carbylamine, which has very very bad smell. It has foul smelling substance. Okay, 2 degree and 3 degree amines do not show this reaction. So this reaction is known as carbylamine reaction or isocyanide test. देखो टेस्ट आ गया इसमें, इट इज यूज्ड फॉर एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी एमाइन। तो प्राइमरी एमाइन कंफर्म करना हो तो उसके लिए हम कार्बिल एमीन रिएक्शन को यूज करेंगे। और कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या है, प्राइमरी एमाइन प्लस क्लोरोफॉर्म, प्राइमरी एमाइन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH, इन तीन की रिएक्शन कराना है। एग्जाम में ये जो कार्बिल एमीन से रिएक्शन है, इससे क्वेश्चन में एग्जाम में पैटर्न किस तरीके से पूछता है, सबसे पहला पैटर्न पूछता है नेम रिएक्शन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कार्बिल एमीन रिएक्शन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा कार्बिल एमीन रिएक्शन। सेकेंड क्वेश्चन इसमें आता है कन्वर्जन, ये इसमें व्हाट हैपन्स व्हेन प्राइमरी एमाइन रिएक्ट्स विद अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म, अल्कोहलिक KOH एंड क्लोरोफॉर्म। तो जब प्राइमरी एमाइन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड। साइनाइड होता है CN और आइसोसाइनाइड क्या होता है NC। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, KCl बनेगा और H2O बनेगा।
तो ये हो गया इसके साइड प्रोडक्ट। हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, RNC, जिसको हम कहते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या कहेंगे, एल्किल आइसोसाइनाइड। और इसकी स्मेल बहुत ही बुरी स्मेल है, वेरी बैड स्मेल। तो इसलिए इसको हम टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं कार्बिलैमिन टेस्ट, या इसी कार्बिलैमिन रिएक्शन के नाम से भी इसको हम जानेंगे। तो ये हो गए फॉर एग्जांपल, ये तो हो गया हमारा एल्किलैमिन। अब इसी हम एनिलीन, एनिलीन के साथ यदि रिएक्ट कराएं तो क्या होगा, तो R की जगह क्या लिख रहे हैं हम, C6H5, सीधा सा कंसेप्ट है। RNC की जगह क्या लिखेंगे, बेंजीन रिंग लिखेंगे। तो देखो पैटर्न सेम है। आप एल्किलैमिन और एरिलैमिन दोनों की बात करें तो प्रोडक्ट का जो पैटर्न है वो सेम है, बेंजीन रिंग, यहाँ R की जगह लिखना है और यहाँ पर लिखेंगे हम NC प्लस KClH2O, ये सब एज इट इज है। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी कार्बिलैमिन रिएक्शन। इस कार्बिलैमिन रिएक्शन में एग्जाम में ये पूछेगा आपको CH3NH2 प्लस CHCl3 और यहाँ पर KOH, इस तरीके से पूछेगा। यहाँ पर लेगा नंबर 1, यहाँ पर लेगा ये नंबर 2। तो नंबर 1 और नंबर 2 का मतलब क्या, एमीन की रिएक्शन किससे इससे कराना है, क्लोरोफॉर्म और KOH से। तो ये क्या बना लेगा, सीधा सीधा RNC की जगह क्या बनाएगा ये CH3NC, क्योंकि R की जगह हम क्या लिख रहे हैं, R की जगह CH3 लिख रहे हैं। तो सिर्फ आपको मॉडल इक्वेशन याद रखना है। मॉडल इक्वेशन आपको यदि याद है तो आपको सिर्फ रिएक्टेंट से कंपेयर करना है। R की जगह क्या लिखना है, सिर्फ वो करेंगे तो सीधे सीधे R की जगह हमको लिखने के आ जाएगा जो भी हमारे पास वैल्यू हो। यदि हमारे पास ये कंपाउंड देता है C6H5NH2 तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आप कंपेयर करो RNH2 और इन दोनों में NH2 तो सेम है। R की वैल्यू क्या हो गई C6H5, यहाँ पर R को लिख देंगे C6H5NC। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन। आफ्टर कार्बिल एमीन रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। इस रिएक्शन को नोट डाउन कर लेना, ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन को डिफरेंशिएट करने में काम आएगा। ठीक है, चलिए नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन क्या है, तो प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन react with nitrous acid to form diazonium salt which is unstable, so liberate nitrogen gas। सीधे सीधे हम कह सकते हैं इसको, प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म नाइट्रोजन गैस, ठीक है, और डायजोनियम सॉल्ट। तो ये देखो ये है RNH2 प्राइमरी एमाइन, इसकी रिएक्शन कराना है हमको नाइट्रस एसिड से। और ये नाइट्रस एसिड कैसे मिलता है, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए HNO2 की जगह ये आपको लिख कर दे देगा NaNO2 और HCl। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। NaNO2 प्लस HCl इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा NaCl और यहां पर क्या बचेगा HNO2। तो ये HNO2 कहां से मिलेगा, इन दोनों से ही मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएगा डायजोनियम सॉल्ट, और डायजोनियम सॉल्ट इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये एल्कोहल बनाएगा और साथ में नाइट्रोजन गैस और KCl को रिमूव करेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास रिएक्शन। अब यहां पर समझना ये है हमारे पास इस रिएक्शन में हमें पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि आप एमीन को एल्कोहल में यदि कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एमीन को किस में कन्वर्ट करना है, एल्कोहल में, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बहुत सिंपल सा पैटर्न है, एमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करा दीजिए और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा दीजिए तो ये क्या बना लेगा, एल्कोहल। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम CH3NH2, इसकी रिएक्शन यदि हम HNO2 के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, NH2 की जगह क्या लिखना है, अब हमको इसकी जगह लिख देना है सीधे सीधे OH। तो ये बन गया मीथेनॉल। एमीन से एल्कोहल बनाने के लिए ये मेथड है, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। फिर इसके बाद देखें हम एरोमेटिक एमाइन, ये तो अभी हमने देखा एलिफेटिक एमाइन। एरोमेटिक एमाइन कैसे रिएक्ट करेगा, नाइट्रस एसिड के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा डायजोनियम सॉल्ट। कैसे, ये देखो ये वाली रिएक्शन कराएंगे, बेंजीन उसके साथ एनिलीन, ये हो गया एनिलीन, इसकी रिएक्शन कराना है HNO2 के साथ तो ये क्या बनाएगा, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, मतलब ये हो गया N2HCl और साथ में
NaCl। ठीक है, ये हो गया इसका डायएजोनियम सॉल्ट। इस डायएजोनियम सॉल्ट का फिर से हाइड्रोलिसिस कराएंगे, फिर से क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो ये क्या बना लेगा, इसके बाद आगे स्टेप नहीं लिखना है। पर यदि फिर से इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो जैसे इसमें आपने हाइड्रोलिसिस कराया था ना, तो क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस कराने से R के साथ क्या ऐड हो गया, OH। तो ऐसे ही R मतलब हो गया बेंजीन रिंग, ये बना लिया हमने बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के साथ क्या ऐड हो जाएगा, OH। इस कंपाउंड का नाम है फिनॉल। इस कंपाउंड का नाम क्या है, फिनॉल। तो एनिलीन को आप फिनॉल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फिर से वही देखो, एलिफेटिक में क्या हुआ, NH2 की जगह क्या लिख दिया हमने, OH। तो वैसे ही एरोमेटिक में भी NH2 की जगह क्या लिख देना है, OH। तो ये आपके कन्वर्जन में भी काम आ जाएगा और डिसइनगाइज करने के काम आ जाएगा। ये हो गया रिएक्शन। ये किसके साथ रिएक्शन है, ये रिएक्शन है नाइट्रस एसिड के साथ प्राइमरी एमाइंस का। सेकेंडरी एमाइन, तो जब सेकेंडरी एमाइन की रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, क्या हम कराएंगे, यहां पर अब हम सेकेंडरी एमाइन की रिएक्शन करा रहे हैं R2NH, इसकी रिएक्शन कराना हमको HNO2 के साथ। ठीक है, तो ये बनाएगा एक नाइट्रोसोएमीन। ये क्या बनाएगा, नाइट्रोसोएमीन। नाइट्रोसोएमीन क्यों, क्योंकि यहां पर NO ग्रुप ऐड हो गया, तो ये हो गया N नाइट्रोसो डाई एल्किल एमीन। नॉमेनक्लेचर कैसे कर रहे हैं, पहले इस स्ट्रक्चर को पूरा डिटेल बना लेना। R2N सिंगल बॉन्ड NO, तो ये नाइट्रोसो ग्रुप, NO मतलब क्या है, ये आपने लिगेंड के बारे में पढ़ लिया है, ये नाइट्रोसो है। नाइट्रोसो ग्रुप किसके साथ बॉन्डेड है, नाइट्रोजन के साथ, तो इसको हम कहेंगे N नाइट्रोसो। कितने एल्किल ग्रुप हैं, 2 एल्किल ग्रुप, डाई एल्किल, और ये सब क्या था, एमीन, तो डाई एल्किल एमीन। ये हो गया मेटा नाइट्रोसो, सॉरी N नाइट्रोसो डाई एल्किल एमीन। ये होगा किसके साथ रिएक्शन, सेकेंडरी एमाइन के साथ। ठीक है, और एरोमेटिक को यदि हम ले लें, एरोमेटिक सेकेंडरी एमाइन में क्या होगा, तो पैटर्न सिंपल सा है, एक R की जगह क्या किया हमने, एक R की जगह N, ये बेंजीन को लिखा हुआ है, तो ज़्यादा डिफरेंस तो इसमें कुछ है नहीं, सीधा सीधा सा कंसेप्ट ही है। कंसेप्ट क्या है, R2 की जगह हमने क्या लिखा, R, और यहाँ पर लिखा बेंजीन रिंग, तो प्रोडक्ट में भी क्या होगा, R2 की जगह क्या होगा, एक होगा R और एक बेंजीन रिंग, तो नाम क्या हो जाएगा, अब ये तो होगा N नाइट्रोसो, ये हो गया N नाइट्रोसो, N एल्किल और एनिलीन, क्योंकि ये एनिलीन का डेरिवेटिव है। बेंजीन रिंग, इसके साथ ये होता है एनिलीन, एक हाइड्रोजन की जगह एल्किल ग्रुप, तो एल्किल एनिलीन, N एल्किल एनिलीन, और इसी नाइट्रोजन से नाइट्रोसो ग्रुप है, तो N नाइट्रोसो N एल्किल एनिलीन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी रिएक्शन देखेंगे सेकेंडरी एमीन के साथ। हो गया कंफर्म। जब ये इतना हो जाएगा सेकेंडरी एमाइन के साथ, तो अब टर्सरी एमाइन के साथ। अब देखो प्राइमरी एमाइन में क्या बनाया था इसने, एल्कोहल। प्राइमरी एमाइन में क्या बनाया, एल्कोहल, और सेकेंडरी एमाइन में क्या बना रहा है, ये बना रहा है नाइट्रोसो कंपाउंड। और टर्सरी एमाइन क्या करेगा, तो टर्सरी एमाइन की रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड के साथ कराएंगे, तो ये बनाएगा हमारे पास एक सॉल्ट, ट्राई एल्किल अमोनियम नाइट्रेट, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। और यदि इसी को हम बेंजीन रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कुछ नहीं, सीधा सीधा सा काम होगा, एक R की जगह क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और उसके नाइट्रोजन के साथ पैरा पोजीशन में जाएगा NO। तो यहाँ हमारे पास अभी डिफ्रेंशिएशन हो गया। डिफ्रेंशिएशन क्या, कि जो ओपन चेन कंपाउंड है, ये ओपन चेन कंपाउंड क्या बना रहा है, ट्राई एल्किल अमोनियम नाइट्रेट, और बेंजीन कंपाउंड क्या बना रहा है, पैरा नाइट्रोसो NN डाई एल्किल एनिलीन। ठीक है, इस नाम को याद रखना है। तो ये हो गया हमारे पास कंपाउंड्स। इस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन को याद रखेंगे। इनमें देखो रिएक्शन होने को तो बहुत सारी कंफ्यूजन वाली रिएक्शन है, इनको याद रखने का सिंपल सा पैटर्न क्या है, आपको ये समझ, इसको लिख करके याद करेंगे, स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करेंगे, केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, तभी आपको ये चीज़ याद होगी। ऐसे ही बुक को देखने से या जहाँ भी आपने नोट्स बनाए उसको सिर्फ देखने से आपको याद नहीं होगा, आपको लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि यार ये H X के साथ निकला था या H OH के साथ निकला है, तब आपको वो चीज़ याद होगी। ठीक है,
नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ये हम देखते हैं, रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से आता है एग्जाम में। और हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अभी देखो कंफ्यूजन दे दिया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, अरे कुछ कंफ्यूजन नहीं है। बेंजीन रिंग आपको बनाती बनती है, ये हो गई बेंजीन रिंग, तो हो गया बेंजीन। सल्फोनिल मतलब सल्फर, ठीक है, ये हो गया सल्फ मतलब सल्फर। फिर इसके बाद सल्फर से 2 ऑक्सीजन आपको बॉन्ड बनाना है, तो ये हो गया सल्फोनिल, और क्लोराइड मतलब Cl, तो ये नाम हो गया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन कराना है हमको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन से। इस रिएक्शन को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं हम। सबसे पहले क्या होगा, इसकी रिएक्शन किससे कराना है हमको? प्राइमरी एमाइन से, RNH2, तो ये हो गया RNH2। अब दिख रहा है कंसेप्ट, क्या समझ में आ रहा है? HCl को अलग कर दो, नाइट्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? सल्फर के साथ, ठीक है। तो ये देखो, ये होगा रिएक्शन, इसमें बेंजीन रिंग, उसके साथ सल्फर है, सल्फर से 2 ऑक्सीजन, इस सल्फर के साथ कौन किसने बॉन्ड बना लिया? नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन के साथ एक R और एक H, तो अब इसका नाम क्या होगा? ये है सेकेंड, अब ये प्राइमरी एमाइन है, ठीक है। प्राइमरी एमाइन में क्या होगा? अब इस स्टेटमेंट को याद रखना, ये वाला स्टेटमेंट याद रखो। प्राइमरी एमाइंस गिव्स एन एथिल बेंजीन सल्फोनिल एमाइड। अरे इतना सारा कंफ्यूजन दे दिया, सल्फोनिल एमाइड। देखो एमाइड का मतलब क्या होता है? एमाइड का मतलब होता है CONH2, ये कार्बोनिल सल्फाइड है, कार्बोनिल एमाइड है। इसी कार्बन की जगह हमने क्या लगा दिया है? सल्फर, तो ये हो गया सल्फोनिल एमाइड, SONH2। तो ये क्या है? सल्फोनिल एमाइड। सल्फोनिल एमाइड के साथ क्या है? सल्फर के साथ क्या है? बेंजीन रिंग, और नाइट्रोजन के साथ क्या है? एल्किल, तो ये हो गया एन एल्किल, यहां पर एन एल्किल बेंजीन सल्फोनिल एमाइड, ठीक है, ये इसका नाम होगा। तो प्राइमरी एमाइन क्या कर रहा है? एन एथिल बेंजीन सल्फोनिल एमाइड का फॉर्मेशन कर रहा है, विच इज सॉल्युबल इन एल्कलाई। सॉल्युबल क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर एल्कलाई मतलब क्या? बेस। तो यहां पर नाइट्रोजन ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है, इसीलिए ये बेस में सॉल्युबल है, मतलब एल्कलाई में सॉल्युबल है। बट सेकेंडरी एमाइन में क्या होगा? तो सेकेंडरी एमाइन का मतलब क्या होता है यहां पर समझना। सेकेंडरी एमाइन मतलब क्या? यहां पर क्या जाएगा? R, तो इस H की जगह क्या जाएगा? R, तो ये क्या बना लेगा? इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा NN डाइमेथिल डाई एथिल बेंजीन सल्फोनिल एमाइड, ठीक है। तो देखो हमने 2 एल्किल ग्रुप को रिप्लेस कर दिया, दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया सेकेंडरी। सेकेंडरी एमाइन क्या रिएक्शन कर रहा है? तो सेकेंडरी एमाइन में अब ये कंसेप्ट समझ लो, फिर से HCl निकलेगा, HCl निकलेगा तो क्या होगा? ये कंपाउंड बनेगा, ये हो जाएगा एन एल्किल, एन एल्किल मतलब NN डाई एल्किल, ये हो गया NN डाई एल्किल बेंजीन, ये हो गया बेंजीन सल्फोनिल एमाइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट। तो प्राइमरी की रिएक्शन आपने देख लिया, प्राइमरी रिएक्शन क्या कर रहा है? ये बना रहा है हमारे पास एन एल्किल बेंजीन सल्फोनिल एमाइड विच इज सॉल्युबल इन एल्कलाई। और सीधे सीधे से अब इसको हम कहें कि जब हिंसबर्ग रिएजेंट प्राइमरी एमाइन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये एमाइड बनाएगा जो कि सॉल्युबल है। सेकेंडरी एमाइन जब रिएक्शन करेगा तो ये एमाइड बनाएगा जो कि बेस में सॉल्युबल नहीं है, इट इज नॉट सॉल्युबल इन एल्कलाई। ये हो गया, देखो प्राइमरी और सेकेंडरी को आपने डिफरेंशिएट कर लिया। और टर्सरी एमाइन, सो टर्सरी एमाइन में अब कहीं पर भी ऐसा कोई हाइड्रोजन नहीं है। देखो टर्सरी मतलब क्या? यहाँ पर इस H की जगह क्या जाएगा? R, तो ये Cl किसके साथ जाएगा? ये तो कोई कंपाउंड ही बनाएगा, तो टर्सरी की रिएक्शन नहीं होगी। तो ये हम डिफरेंशिएट करेंगे। प्राइमरी एमाइन फॉर्म्स एमाइड विच इज सॉल्युबल इन बेस, सेकेंडरी एमाइन फॉर्म्स एमाइड विच इज इनसॉल्युबल इन बेस, एंड टर्सरी एमाइन डजंट रिएक्ट। ये है इसका डिफरेंशिएशन। गॉट इट? आफ्टर रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट,
अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। आज के लिए हमको कितना याद रखना है, जो हमने रिएक्शंस याद किया है, इन रिएक्शंस को आपको याद रखना है। दीज रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वंस अगेन रिमाइंड करा रहा हूं मैं, कार्बिल एमीन रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हिंसबर्ग रिएजेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड वेरी वेरी रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज को आपको याद करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन, ओके। इफ यू हैव डाउट you can contact me. Thank you.